غم کھا گیا اے ساری جوانی عمران دائے مان رہ گیا غم کھا گیا اے ساری جوانی عمران دائے مان رہ گیا. Our ancestors secured freedom. Our ancestors secured freedom For Mother India. for Mother India. Now it's our duty Now it's our duty to to serve India by making the country drug free. by making the country drug free. I took this pledge This pledge that I will remain that I will remain committed towards the cause committed towards the cause and devote my time and devote my time for this. for this. I will I will neither take neither take drugs drugs nor nor let others take drugs. I will initiate the quest for Nasha Mukt Bharat Abhiyan with myself. اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ یہِ چھُ یُس یہِ زِندگی چھُ اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ محمد یوٗسف اصلاحی صٲبن چھِ یہِ لیٚچھمٕژ یہِ چھُ وٕنکیٚنس واریاہن سکوٗلن ہٕنٛدِس نِصابس منٛز سیلبسس منٛز چھِ یہِ اور اس عمر سے علاوہ جو 40 سال 50 سال کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں لیکن زیادہ تر جن کی شرح ہے وہ 17 سے 30 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں اس میں پھنس چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کس صورت میں یہ لوگ یہ دوائی استعمال کرتے ہیں یعنی چرس ہے اس کا ایک نام جو ہمارے یہاں کشمیر میں بھی ملتا ہے موجود ہے اگتا ہے بھنگ جسے چرس لوگ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو ایز دوا ڈرگ استعمال کرتے ہیں یا افین ہے براؤن شوگر ہے میں لوگ استعمال کرتے ہیں یا تو ٹیبلٹس کی صورت میں استعمال کرتے ہیں یا انجیکشن کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ کر بہت حیران ہوں گے ہیوی کول جو ہم پینلنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں ہیوی کول کو بھی بحثیتی ڈرگ استعمال کیا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بوٹ پالش کو بھی لوگ ایز ڈرگ استعمال کرتے ہیں. اور شرم کی بات ہے کہ جو ہم مہینہ بھر اپنا جو موزہ ہے اس کو صاف نہیں کرنے کی بات ہے. بہت سارے شکلیں ہیں ڈرگز کی بہت سارے شکلوں میں لوگ ڈرگ لیتے ہیں لیکن سوچنا ہے کیوں لوگ اس دھندے میں پھنس جاتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں ہزاروں وجوہات جیسے ان ایمپلائمنٹ بے روزگاری. جب بے روزگاری بڑھتی ہے ایک جوان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو وہ بیکار بیٹھ جاتا. آپ نے بڑے وستار سے یہ ہمیں سمجھایا کہ ڈرگس کے کاز کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یہاں پہ بیٹھے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا سٹاف ہے ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف پیرنٹس کی یا ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پہ اپنے ماحول پہ اپنے سراؤنڈنگز پہ یہ نظر رکھیں کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک مجھے سپیچ یاد آ رہی ہے. آپ کسی کو کچھ بھی کہو کیا بھی کہو بٹ جب تک اس کا ضمیر خود سے نہ جاگے تب تک وہ ان چیزوں سے نہیں رکے گا. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جس کو سگریٹ یا جس کو منشیات لینے ہیں آپ اس کو 1000 نصیحتیں کرو آپ اس تک بات پہنچاؤ بٹ پھر کو اس کے بعد وہ کہیں الگ جا کے واش روم میں جا کے کہیں اور جا کے پھر سے وہی چیزیں کرے گا. اٹس فار شیور. سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ پیرنٹس کی بنتی ہے کہ بچوں کو صحیح سے
पहले से तरबियत की जाए। पर अंधेरा नजर आ रहा है। बेटे ने चारों तरफ नजर फेरी तो देखा रोशनी ही रोशनी थी। तो माँ ने बेटे ने जवाब दिया, माँ अब यहाँ पर अंधेरा नहीं, रोशनी ही रोशनी है। तो माँ ने अपनी इस बेटे से, बेटा जब तुम रोशनी जलाने का, दिया सिलाई जलाने का अज़्म रखते हो, जब तुम रोशनी जलाने का हुनर जानते हो, तो आपको अंधेरों से कभी डरने की जरूरत नहीं। My social responsibility to be the part of the event and to raise my voice for the cause. यहाँ पे अगर टीचर घर पे बैठेगा तो उसको शोभा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारे इमाम साहब घर पे बैठेंगे तो उसको शोभा नहीं मिलेगा। हमारी सोसाइटी में जिसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी होते हैं, यानी जिनसे कैंसर होता है। तो इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज भी होती है, जैसे फिब्रोसिस भी होती है। इस पैंडेमिक थ्रू आउट वर्ल्ड, बट इस टाइम कश्मीर में एपिडेमिक चल रहा है। आई विल which is not permissible in my deen, in my Islam, then why can I do that? Then why I support that? यहाँ पे जो हम आते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं कि हम कादिर बोलते हैं, कंस्पिरेसी बोलते हैं, रेमेडीज। Deputy Commissioner Kupwara, Mr. Khalid Jahangir Saab has just arrived. I welcome you, sir, to this auditorium. We are actually at the concluding juncture of this program. और जिस मौजूद की बुनियाद पर हम सब जमा हुए हैं, इंसानियत का गर्व रखने वाला, इंसानियत के साथ मोहब्बत रखने वाला। और thankfulness to Deputy Commissioner Kupwara Saab and ADC Saab who joined us. Sir, you really honored us by joining this occasion. Thank you, sir. जिस हिसाब से ये हो रहा है, जिस हिसाब से फैल रहा है, कश्मीर में सोपोर डिस्ट्रिक्ट और नमकता डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर है। हमारे कुपवारा में इट हैज़ ऑल्सो मेड इनरोड्स। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं उसका मतलब है कि प्रॉब्लम का स्केल बढ़ता है। तो जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे हम कभी ये भी इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये मसला बहुत ही संगीन मसला बन चुका है और इट इज कटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ये किसी एक मुल्क तक, किसी एक खित्ते तक, किसी मुल्क के हिस्से तक या किसी समाज के तबके तक ये बात महदूद नहीं है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे पिछले 10-20 सालों में अचानक से इस वबा का फैलाव बहुत हो गया है। हमारे नौजवान इस बुरी लत के चुंगल में फंस गए हैं। भांग है, चरस है और कुछ जो है वो मदद होके आती हैं जो ओपिएट्स, ब्राउन शुगर और ये इस तरह की चीजें। और आज जो है वो ये जंगल की आग की तरह ही ये केमिकल सब्सटेंसेस का यूज है, खास ओपिएट्स का, ब्राउन शुगर का, और उससे मिलती जुलती चीज ये जंगल की आग की तरह फैल चुका है। और ऑन बिहाफ ऑफ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में आज जिला इंतजामिया कुपवाड़ा को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज जो दिन मनाया जाता है कि मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, आज कुपवाड़ा जिले में मैंने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक मैंने आज पहली बार अवेयरनेस प्रोग्राम, सिंपोजियम, सेमिनार्स, रैलीज देखी। इकबाल कहते हैं कि गवा दी हमने वो मीरास जो अफलास से पाई थी कि सुरैया से जमीन तक आसमानी हमको देवा। यानी अगर हम कुरान और सुन्नत के उसूलों पर चले
तब जाकर हमारी खसलत नेक होगी और हमारी बुलंद परवास होगी। कोशिश यही है कि जो हमारे सामने हमारा फ्यूचर बेटा है, इससे हम रोकें। उस लत के लिए हर तरह से कोशिशें हैं, इंतज़ामिया के लिए की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, लेकिन हमें खुद बदलना होगा। जो डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि आइमा मसाजिद और हमारे उसातिज़ा को सवेरे अगर वो सिर्फ असम्बली में 2 मिनट इल्म पे बात करेंगे, इन चीज़ों पे बात करेंगे, तो शायद इन चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं। तो आपने मुदल्लल तकरीर सुनी, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हायल नहीं रहना चाहता हूँ कि जो काम भी होंगे आपकी मसरूफियात भी होगी। मैं सिर्फ कवरेज के लिए आया था, लेकिन इस कॉलेज का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, जिस तरह डाइस इंचार्ज ने खुद कहा, डॉक्टर मेहर साहब ने, तो कोशिश ये हुई कि अगर मैं कुछ बोलता नहीं तो शायद कुछ और ही बात होती। लेकिन एक ही बात जो हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कही कि ये नशा जो है कातिल है, ये हमें अपनों का नहीं रख पाता है, कि हमें इस चीज़ से दूर रहना है और हमें वो लोग बनने हैं जिस तरह आज आपके डाइस पे आपके ज़िला तरक्याती कमिश्नर और बाकी ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स बैठे हैं, हम कल आप लोगों को देखना चाहते हैं। तलबा, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने छुट्टी के दिन भी यहाँ आकर इस खूबसूरत जो कि बड़ा एक लम्हा फिक्रिया टॉपिक था ले सकता है अगर हम इसके खिलाफ मीनिंगफुल स्टेप्स ना लें। तो हमको हर दिन जो है वो फिक्र करनी होगी और लगातार जो है वो इसके बारे में लगातार जो है वो इसके खिलाफ जदोजहद करनी होगी, ताकि ये जो एक मोहलिक एक नशा की बीमारी है, आने वाले जो फ्यूचर्स हैं उनको ये ड्रग इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि जब एक इस्तेमाल करता है तो दूसरा को मैं भी इस्तेमाल करता है।